Yes, students, today we will start exercise 8.3. This is the based on compound interest. मतलब interest per interest you can see half yearly or the yearly compound interest per annum. Simple interest and compound interest में दोनों सा different होते हैं. Then you can see this is the simple interest. Interest on the principal this 100 means 10. After this 110, this you will use the principal for the next year. This is 100, but in the same compound interest you will use 110. Next, your value of A is there, principal is there 110, but in this principal is there 100. Then simple interest and compound interest, they are different. You can see this the 120, this 121. You will pay more than the सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा आता है, उससे सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा पे करना पड़ता है. एंड इसमें प्रिंसिपल आपका 100 ही काउंट होता है. इसमें जो आपका 121 है, नेक्स्ट टर्म में आप 121 ऐड करोगे. ओके, यू विल यूज़ 121 मीन्स फर्स्ट टाइम यू विल यूज़ 100, सेकेंड टाइम you will use 110, and the third time you will use 121. But the formula is there, you can define the formula and you can use the formula. A is equal to P 1 plus rate upon 100 and N is equal to time, जो आपका year है. Then rate is year, rate means R is rate, and you can use this formula and you can find out easily. Okay. एक बात और, जब आपका बोला जाए कंपाउंड ईयरली एंड एनुअली, एनुअली मीन्स पूरे ईयर का एंड हाफ ईयरली मीन्स हाफ करना है उसको. आपका रेट उसमें हाफ हो जाएगा. आप ईयर को आप फुल ले सकते हो. देन यू कैन टेक ईयर फुल एंड रेट यू विल डू इट हाफ. ए बी सी, सी पार्ट में आप ऐसा करोगे. 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आप सी पार्ट में ऐसा करोगे. देन यू विल सी what will happen. Now the first question, first part, 8.3 first question, first part, 10,800 is the principal and there 3 years time and rate is there 12 1/2% per annum. Annum means yearly, annually, compounded yearly. Now the first question, apply the formula. 1 plus rate upon 100 power t means n. तो आपने 3 years, then rate is there 25/2. when you will open this 25, 12 to the 24 and 1 25/2 you will apply here. Then solve it by 3. This 25 4 ja 100. Then after this 8, 1/8 is there, power is 3. Then take LCM 9/8. 9/8 is there 3 times, then we will write 3 times. Then solve this by the cancellation form. This you will use by the table of 2. 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 4 ja 8 and 0 0. आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो टेबल ऑफ 4. आफ्टर दिस अगेन 4 the table of 4, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12 and 4 5 ja 20 0. This will be cut 1350. After this again 4 4 6 2 table of 2 2 2 6 ja 12, 2 7 ja 14 and 2 5 ja 10. Okay, this done. Then after this 9 multiply 9 multiply 9, 9 9 ja 81 and 9 7 29, 6 75 divided by 32. Then you will get this answer by dividing. You will get. Calculation थोड़ी hard है but प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा. ओके, नाउ दिस विल गेट ए. ए मीन्स इसके अंदर प्रिंसिपल ऐड है. दिस विल इंक्लूडेड, प्रिंसिपल इंक्लूड है. देन वी विल राइट कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी. स्टार्टिंग प्रिंसिपल इज देयर 10,800 जो आपने बोरो किया. देन आफ्टर दिस यू विल फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. 4577.34 इज द आंसर. Okay, the next B part is there. Principal is there 18,000. Year is there 2 1/2 year and 10% per annum compounding annually. Annually pay करना है फिर से. तो years 5/2 year, time is there 5/2 and 18,000 principal.
how you will write this rate? This is year and per annum. This you can find out ईयरली, 2 ईयर का आप सिंपल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हाफ ईयर जो लेफ्ट रह जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड कर सकते हो. ओके, तो 2.5 ईयर थे तो आपने इसको सेपरेट कर लिया 2 ईयर्स का. देन अप्लाई दिस फॉर्मूला 10/100, रेट इज देयर 10, 10/100, पावर इज देयर 2. आफ्टर दिस सॉल्विंग दिस 11/10, 11/10, तो 2 ईयर्स का कम आपका ए आ गया है. इसके बाद आप क्या करोगे? इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स. ओके, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स विद इंटरेस्ट. अब इसको लेकर आपने फाइंड करना है नेक्स्ट हाफ ईयर का. ये आपका प्रिंसिपल हो गया. अब क्या बन गया? ये प्रिंसिपल बन गया. आप इसको अप्लाई करो, PRT डिवाइड बाय 100. P मीन्स दिस, R मीन्स 10% एंड ईयर मीन्स हाफ ईयर. ओके, देन कट इट, 0 कट बाय 0, 2 0 कट हो गई, कैंसिलेशन. 21089 इज द इंटरेस्ट. और ये जो आपका प्रिंसिपल है इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे. देन यू कैन फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू जो आपको पे करनी है. फाइनल वैल्यू 22,869. ओके, डू इट केयरफुली. नाउ द C part is there 62,500, हाफ ईयर, 1.5 ईयर एंड 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब हाफ ईयरली पे करना है तो हम क्या करेंगे? ईयर को डबल कर देंगे और इसको हाफ कर देंगे. रेट को हाफ कर देंगे, ईयर को डबल कर देंगे. 1.5 का डबल क्या हो जाएगा? 3 एंड रेट इज देयर 4. वी विल राइट हियर 4 बाय 100. ईयर इज देयर 3 and 62500. After this convert into 104, 104 3 times. There is also 104. Okay, 104, 104. After this we will cut 0 cut by 0, 2 0 cut हो जाएंगी. Then after this will cut by the table of 25, 25. After this 25 4 जा 100. फिर से 25, this 25 4 जा 100. ओके, मैंने इसको कट कर दिया 25 के टेबल से. 25 को जब स्क्वायर किया जाता है 625 होता है. देन यू विल गेट 25. दिस 25 4 जा 100. देन डिवाइडिंग में रह जाएगा 4 4 जा 16. आफ्टर दिस यू विल गेट 4 2 जा 10, 4 6 जा 24. अगेन 4 2 जा 10, 4 6 जा 24. दिस डिजिट विल रेयर 26 का स्क्वायर 676. After this 70,304 is their A. Means included interest, compound interest and principal. Compound interest फाइंड कर ले, A माइनस P, ये इंक्लूड है इसके अंदर इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? 62500. देन वी विल राइट 62500. आफ्टर दिस यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट 7804. नाउ द D part, how you will solve D part? D part again there 8,000 for 1 year, 9% per annum, हाफ ईयरली. फिर से कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोल रहा है तो ईयर को हम डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे. दिस विल बी 9/2 एंड दिस 2. ओके, वी विल कन्वर्ट इनटू 2. नाउ सी दिस 2 and 9/2. रेट इज हाफ एंड ईयर विल बी डबल. देन 209/200. आफ्टर दिस 0 0 कट 0, 2 0 कट हो गई इजीली. This 0 cut by 0 1. After this 20 is there, 20. Then we will cut here 2 2 जा 4. There is 1 0 10 and 209 multiply 209 multiply 2 is there and dividing by 10. When you multiply then you will get 87362. तो आपको डेसिमल राइट करना है, नीचे 10. तो डेसिमल बैक साइड से स्टार्ट किया 1 0. बट पैसे के लिए आप एक 0 और ऐड करते हो. आपका आंसर तो आया था 87362 बाय डिवाइडिंग 10. ओके, आपका ये आंसर आया तो डेसिमल यहाँ पे राइट किया. उसके बाद पैसे की मैंने एक 0 और राइट की. अदरवाइज आप 2 डिजिट में राइट करते हो रुपीज़ के जो पैसे होते हैं. 100 पैसे 20 और 2 प्लेस वैल्यू होती है इसलिए 20 पैसे. क्लियर?
Now the E part 10,000 1 year 8% per annum compounded half yearly. फिर से हाफ ईयरली है, इसको डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे. ओके, नाउ द सेम क्वेश्चन, रेट इज हाफ 4/10 104/100 104/100. जब इसको सॉल्व करते हो देन यू विल गेट 104 100 + 4 दिस 104. आप यहाँ पे 2/50 भी कर सकते हो, बट ईजी रहता है 0 0 वाला, तो मुझे तो 0 0 वाला ईजी रहता है. जन 0 कट बाय 0, तो 4 0 यहाँ पे कट हो जाएंगी, डाउन साइड एंड अप साइड, दिस कैंसलेशन. And 104 multiply 104, you will get 10,816. After this, this is the included compound interest, means A minus P. Principal is there 10,000. After this, write there 10,000. Okay, you will get compound interest 816. Okay, thanks.